Okay, so today we are starting Indian writing in English. As you know very well that university had decided कि आप आपके पास चॉइस होगी, आप जो पेपर चाहे उसे कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ले रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर या जो पहला वर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लैंक्विन बियरर्स, ये एक पोएम है बाय सरोजनी नायडू, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं हम बात करेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। जब हम सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक आप सभी को एकदम क्लियर होगा कि सरोजनी नायडू एक पॉलिटिशियन भी थी, एक फ्रीडम फाइटर भी थी, एक तरह से एक वॉलंटियर भी थी, एक तरह से आप ये भी मानिए कि वो बहुत अच्छी पोएटेस भी थी, और इसके अलावा भी कई सारे उनके उपाधियां हैं जो उनके लिए कही जाती हैं, बोली जाती हैं। So now first of all we are going to discuss, or we are just going to know about Sarojini Naidu little bit, her life and her works. Name if we talk about, then she was Sarojini Naidu, and also named as the Nightingale of India. Nightingale of India भी उनको कहा जाता था। 13th of February 1879 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। एंड फादर अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय, अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय, AGHORENATH, अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय। मदर नेम was वसड़ा सुंदरी. Her occupation was mainly politician and poetess. She was a great politician as well as poetess. So, nationality we know very well, she was Indian. And University of Madras, where she's just taken the education from. University of Madras, King's College London, Girton College Cambridge. And on the other hand, if we talk about spouse you know very well, the husband or wife for the male. So Govind Rujulu Naidu was the husband of Sarojini Naidu. General, what type of poetry she writes. So she writes about the poems, songs, and you can say some others also. Some notable works are here given. So the Golden Threshold, the Bird of Time, the Broken Wing, the Sculptured Flute. These are some very important and notable works by Sarojini Naidu. These are generally anthologies. Anthologies means these were the collection of poems. And these are the books you can say in which there are many poems collected. She has been a politician, you know very well. So what positions she held? क्या पोजीशंस उन्होंने हेल्ड किए हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। प्रिसाइडेड एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस होते थे उसकी भी अध्यक्षा रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं, आई मीन शी प्रिसाइडेड। एंड गवर्नर यूनाइटेड प्रोविंसेस, और यूपी की ये गवर्नर भी रही हैं। So these are some most important aspects of her life and her works. Now we are going something in detail. We talk of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, also known as the Nightingale of India. Nightingale of India was the child prodigy. Child prodigy she was. Child prodigy means she was if someone is child prodigy means having so much intelligence and you can say can do great thing in childhood. Indian independence activist and poet. She was one of the framers of the Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये पार्टिसिपेंट किया है इन्होंने। एक तरह से कहा जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमर्स में से एक हैं। फ्रेमर मतलब बनाने वाले।
She was the first Indian woman to become the president of an Indian National Congress and the first woman to become the governor of Uttar Pradesh. Very important कि वो पहली ऐसी विमेन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। ऑन द अदर हैंड पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। She was born on 30th of February 1879 in Hyderabad. Her birthday is celebrated as Women's Day. इनका जो बर्थडे है विमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। Sarojini's father, Dr. Agorinath Chattopadhyay, was a professor at Nizam's College. इनके फादर जो थे वो निजाम कॉलेज में प्रोफेसर थे, while her mother Vashara Sundari was a poetess. She was also a poetess. She wrote poetry in Bengali. इनकी जो मदर थी वो बंगाली में पोएट्री लिखती थी, पोएम लिखती थी। Hence Sarojini Naidu, who was the eldest among the 8 siblings, 8 बच्चों में ये सबसे बड़ी थी। Inherited great talent from her parents. One of her brothers, Virendranath, was a revolutionary, and her other brother, Harindranath, was a poet, dramatist, and actor. On the other hand, you can say Sarojini Naidu showed her poetic talent at the age of 11. When she wrote a poem after not doing well in solving mathematical sums, in her words, the poem came to me suddenly but so natural that I wrote it down in a single sitting. इन्होंने सिंगल सिटिंग में 11 साल के एज में 13 आप देखिए सिंगल सिटिंग में इन्होंने पोएम लिखी और इन्होंने क्या कहा देखिए at the age of 13 years she was able to write a long poem of 1300 lines in only 6 days. 13 साल की एज में 1300 लाइन 6 दिनों में लिख दी इन्होंने। Now you can think how was she. She also did well in her studies and passed her matriculation examination from University of Madras. Madras University से इन्होंने matriculation यानी कि 10th पास की। In 1895 she traveled to England to study, first at King's College London and later at Girton College Cambridge. In 1898 she returned to India and married with Govind Rajulu Naidu, a young doctor. ये गोविंद रजुलू नायडू एक डॉक्टर थे जिनसे इन्होंने शादी की थी। She bore 4 children. 4 बच्चे इनके थे, जयसूर्या in 1900, पद्मजा in 1902, and Ranadhina in 1903 and Leela Mani in 1904. Very next year in 1905 she joined the Indian National Movement in the wake of partition of Bengal. जब बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ तो इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर दिया। She came in contact with number of great leaders of India like Gopal Krishna Gokhale, Rabindranath Tagore, Muhammad Ali Jinnah, N.A. Besant, C.P. Ramaswamy Iyer, Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi. During 1915 to 18, she traveled to different regions in India, delivering lectures on social welfare, women empowerment and nationalism. In 1925, she presided over the annual session of National Congress at Kanpur. इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने 1925 में ये अध्यक्षा रही और इन्होंने उसको प्रिसाइड किया जो कि एक कानपुर का सेशन था। In 1929 she presided over East African Indian Congress in South Africa. In 1931 she participated in the round table conference with Gandhi ji and Madan Mohan Malviya. Very important fact, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट गांधी जी के साथ किया था and was jailed along with Gandhi ji and other leaders. In 1942 she was arrested during the Quit India movement. Quit India movement के टाइम पे इनको अरेस्ट भी किया गया and after Indian independence she was appointed as a governor of Uttar Pradesh, United Provinces, presently Uttar Pradesh. In 1949 she fell ill. Her physician came and gave her a sleeping pill for a good sleep. She smiled and said, "Not eternal sleep, I hope. Not eternal sleep, I hope." But that night on March 2nd, 1949, she died in her sleep. Now you can say
She was a great freedom fighter and an equally great poetess. Once Mulkraj Anand remarked about her, although Sarojini had adopted a Western language, she is the main Hindustani like Ghalib और इकबाल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि किसने कहा था? मुल्कराज आनंद जी ने कहा था, तो दिमाग में रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन यूके में पब्लिश हुए गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में. द बर्ड ऑफ टाइम पब्लिश्ड इन लंदन in UK 1912, The Broken Wing published in London 1917, and The Sceptred Flute Song of India, Allahabad Kitabistan, published posthumously in 1943. So this is generally all about the Sarojini Naidu. Now we are going to discuss about her poem, what we are going to study in our syllabus. And this poem that name is Palanquin Bearers. Palanquin, as I told you before, that palanquin means कुछ लोग हिंदी में से पालकी कहते हैं, कुछ लोग इसे डोली कहते हैं, बट मैं कहूंगा कि ये यहाँ जो जिस palanquin की बात कर रही हैं सरोजनी नायडू, this palanquin is nothing but you can say the डोली. डोली जिसे कहते हैं, डोली और पालकी में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है. जनरली पालकी अभी नाउअडेज मंदिरों में जनरली पालकी निकलती है, यात्रा निकलती है, उसमें आप देखते हैं पालकी होती है. और डोली पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द मैरिज. जब मैरिज की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो डोली का नाम लिया जाता है. जनरली हियर शी इज टॉकिंग अबाउट ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, सो आई थिंक she was talking about the palanquin that was Doli. So now we are going to discuss this text. Very important, and you should just to notice every single word, because every word is very, very important. Before going through the poem, first of all, we should go through the vocabulary. In vocabulary, here, lightly means gently or slowly. Bear, to carry, Sways, moves here and there. If something is swaying, that means moving here and there. Skims means flying. And foam, bubble of water, bubbles of water, foam. Stream, a small river. Float means glide. Gaily, with mirth. Mirth means with happiness. Glide, move forward, to go ahead. Pearl, a valuable stone. String means cord, धागा जिसे बोल देते हैं जनरली, रस्सी कोई. Softly, slowly. Bear, carry. Along, forward. Dew, vapor drops. Ray, किरण होती है, beam. Rise and fall of water. Tide is rise and fall of water, tide. Glide, move. Pearl, a precious stone, we discussed before. String, cord, very well. Now we are going to this text. Lightly we bear her along. Here Sarojini Naidu is talking about a bridegroom. A bride. एक ब्राइड के बारे में बात कर रही है, दुल्हन के बारे में बात कर रही है. क्या बात कर रही है? लाइटली. एंड यहाँ जो सिचुएशन है, पहले सिचुएशन समझ लीजिए. यहाँ पे एक डोली है, डोली में एक दुल्हन बैठी हुई है, और दुल्हन को चारों तरफ से, उस डोली को चारों तरफ से 4 कहारों ने उठा रखा है. कहार वेरी वेल, जिन्हें जो कैरी करके ले जाते हैं लोग, पहले इन्हें कहार कहते थे. जनरली दे आर सर्विंग, और ये बहुत ही जो है मेहनत करते थे. अब आप यहाँ देखिए, ये चारों ने पकड़ रखी है, डोली को उठा रखा है, उसमें एक दुल्हन बैठी हुई है. अब ये क्या कह रही हैं, इनको देखते हैं. लाइटली वी बियर हर अलोंग, यानी स्लोली हम आगे लेकर जा रहे हैं. हर किसको आगे लेके जा रहे हैं? बियर हर अलोंग, उस दुल्हन को जो उसमें बैठी हुई थी. तो ये लोग कौन कह रहे हैं?
ये वो जो कैरियर है वो कह रहे हैं कि हम उसे लेके जा रहे हैं। She sways like a flower in the wind of our song. She sways like a flower. अब यहाँ देखिए like का यूज किया गया है, and you know very well जहां पे like, as, such, so ऐसे वर्ड्स का कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है वहां सिमली होती है, तो इस लाइन में सिमली है। She sways like a flower in the wind of our song. और वो ऐसे स्वै कर रही है, इधर से उधर हिल रही है, जैसे कि एक फ्लावर जो है, हमारे जो गीत है, गीतों के जो सॉन्ग है, यानी सॉरी जो गीतों की हवा है उसमें वो शायद फ्लावर स्वै कर रहा हो। अब यहाँ पे मेटाफर देखने को आपको मिलेगा, द विंड ऑफ अवर सॉन्ग। यहाँ विंड और सॉन्ग का कंपैरिजन तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। She skims like a bird on a form of a string. और वो ऐसे स्किम कर रही है जैसे एक बर्ड किसी बबल्स पे, यानी कोई जो बबल्स होते हैं पानी में, बुलबुले होते हैं, उनके ऊपर स्किम करती है, उड़ती है, उस तरह से वो स्किम कर रही है। She floats like a laugh from the lips of a dream. और वो ऐसे फ्लोट कर रही है जैसे कोई जो लाफ होती है, जो हंसी होती है, खुशी होती है, लिप्स यानी जो ड्रीम्स होते हैं उनके ऊपर जो वो जब कोई ड्रीम हम देखते हैं, मेनी टाइम इट यू नो देन वी स्माइल, तो वो उस तरह से जो है वो लाफ कर रही है। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी आपको मेटाफर नजर आएगा, यहाँ भी सिमली आपको नजर आएगी, यहाँ भी सिमली आपको नजर आएगी। तो सिमली और मेटाफर की भरमार है। देन शी इज सेइंग गेली वो गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। और बड़ी खुशी से, गेली मतलब खुशी से, आनंदमय तरीके से, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। हम जो है ग्लाइड करते जा रहे हैं और हम गाते जा रहे हैं। अब ग्लाइड क्यों कर रहे हैं? ग्लाइड करना एक तरह से जैसे रगड़ के कोई चीज चलती है उसे ग्लाइडिंग कहते हैं जनरली। तो यहाँ वो ग्लाइड क्यों कर रहे हैं? सो इट मे बी द डिफरेंट थिंग, इट मे बी दुल्हन ज्यादा मोटी हो, वो ज्यादा थक गए हो, इसलिए उनको ग्लाइड करना पड़ रहा है मजबूरी में, और वो गाना भी गा रहे हैं। Why they are singing? Because they enjoying, they need to be sing. अगर वो गाएंगे नहीं तो शायद वो ले भी ना जा पाए। We bear her along like a pearl on a string. और वो कह रहे हैं और हम उसे लेके जा रहे हैं आगे, like a pearl on a string, जैसे किसी धागे में कोई मोती पिरोया हुआ होता है, उसी तरह से पिरोकर उसे हम आगे लेके जा रहे हैं। Now the next stanza. In this stanza, she is saying again, softly we wear her along. और अब फिर से वो कह रहे हैं धीरे से, आराम से हम उसे और आगे ले जा रहे हैं। She hangs like a star in a dew of our song. और ऐसा लग रहा है कि स्टार की तरह हमारे जो सॉन्ग है, जो हमारे गीत हैं, उनके ड्यूज में वो खो जा रही है, या वो हैंग कर रही है, लटक रही है। She springs like a beam on a brow of the tide. और ऐसे वो स्किम कर रही है, ऐसे वो स्प्रिंग कर रही है, जिस तरह से जैसे कोई टाइड का जो किनारा होता है, वहां पे पानी जो है, जो बीम होती हैं, जो किरणें होती हैं, वहां पे पानी पर पड़ती हैं और वो स्किम करती हैं, स्प्रिंग करती हैं। She falls like a tear from the eyes of a bride. और वो ऐसे ही उसके जो she falls like a tear, और वो इस तरह से गिर रही है, like a tear, आंसू की तरह। मतलब आप देखिए कहाँ आंसू, कहाँ ये दुल्हन। सो वो आंसू की तरह ऐसे गिर रही है। वो गिर कैसे रही होगी, ये समझ में नहीं आई बात। अरे भाई, डोली जब 4 लोगों ने इधर से उठाई है तो वो कहीं ना कहीं हिल रही होगी, इधर उधर इस तरह से हिल रही होगी, और जब हिल रही होगी तो ऐसा वो कह रही हैं कि वो शायद आंसू की तरह इधर से गिर रही है और इधर से गिर रही है। क्या इमेजिनेशन है, जस्ट यू कैन थिंक। टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, ऐसा लग रहा है जैसे उस दुल्हन के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नाउ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और वो कह रहे हैं और धीरे धीरे अब हम फिर से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम ग्लाइड कर रहे हैं और हम गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। देन आगे हम क्या कह सकते हैं, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसी तरह से उनको आगे लेके जा रहे हैं
जैसे एक पाल, एक मोती किसी धागे में पिरोया हुआ हो। अब यहाँ देखिए हमने दो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही प्रोमिनेंटली देखे हैं। क्या हमने देखे हैं यहाँ कि यहाँ सिमिली भी है, यहाँ मेटाफर्स भी है, यहाँ सिमिली नीचे भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज और आपको नजर आ रही है, वो क्या है? देखिए यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसे बोलते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन भी यहाँ नजर आ रहा है। आप देखिए ये लाइन चेक करिए यहाँ पे, एंड देन यू शुड चेक दिस लाइन। देखिए रिपीटेशन ऑफ लाइन। तो ये लाइन जब भी किसी भी पोएम में एक से ज्यादा बार, दो से ज्यादा बार जब रिपीट, दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होती है, देन वी से देयर इज रिफ्रेन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि इसमें क्या रिफ्रेन भी यूज किया गया है, तो आप कहेंगे यस, इसमें रिफ्रेन यूज किया गया है। रिफ्रेन एक तरह का फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें लाइन का रिपीटेशन होता है, तो इसमें यूज किया गया है, इसको हम समझ सकते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें मैं बता देता हूं, जो टेक्स्ट से आती हैं और आपको उसे ध्यान रखना है। टेक्स्ट में क्या आएगा, लिखा हुआ होगा वहां पे, शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम डैश, और डैश के बाद द लिप्स ऑफ अ ड्रीम की जगह उन्होंने दे दिया है वहां पे फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। ये भी दे दिया है, लिप्स ऑफ अ ड्रीम भी दे दिया है, और एक दो और फ्रेजेस दे दी हैं। वहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये समझना कि इस लाइन का यही वाला है या ये वाला है, तो इसलिए ये जरूर नोटिस करके जाएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई थिंक यू विल डू इट, एंड if you have any problem then you can ask me again. Thank you so much. Thanks a lot.